territory of Ladakh and Indian Institute of Astrophysics to the inaugural function of Ladakh's first Astro Festival 2025. This festival marks a pioneering initiative in promoting astrotourism in Ladakh region, blending science with wonder. Ladies and gentlemen, we hope to give you unique experiences for these 2 days with thought-provoking and interesting talks by leading astro experts from the Indian Institute of Astrophysics as well as the University of Kashmir. Thereafter, transforming the evenings into cosmic spectacles with stargazing events at the University of Ladakh Taru campus. We have also laid exhibitions for you outside this auditorium, exhibiting astrophotography and food stall by women self-help groups of Leh. Ladies and gentlemen, without much ado, let us begin with the proceedings of the day. But before we do that, let us welcome our honorable dignitaries with the traditional khatabs. I would like to please do the honors and welcome our honorable chief guest, Dr. V. Girish. Dr. V. Girish is a physicist with a PhD from IISc Bangalore. After postdoctoral research at TIFR on X-ray studies of catalysmic variables, he joined ISRO in 2006. He has worked on several major missions including Rontgen Second, Chandrayaan and AstroSat. Currently, he serves as Deputy Director at ISRO's Science Program Office. He has published over 50 research papers, written a popular science book in Kannada, Taregala Jivana Chakra, Life Cycles of Stars, and regularly contributes articles of newspapers. Today's talk title would be Moon, an Enigma and India's Lunar Mission. Dr. Girish will delve into the mysteries of the Moon and India's lunar journey from Chandrayaan 1 to 3, highlighting key findings, mission challenges, and India's expanding role in lunar exploration. I request you, sir, to kindly... Introduction. So before I begin my presentation, I'm not used to actually standing in one place and talking. I used to walk around, so now I'm forced to stand here. So please excuse me for that. Before I begin my presentation, I would like to ask you all, particularly the students, have you any time seen an alien? You can raise your hand. Anybody has seen an alien? I have seen, and one is standing in front of you. All the people, whoever came to the dais, they started their presentation with July. And I am the only one who don't know what is the meaning of July. So, I am an alien, but I have really seen an alien. Almost 60 years back, a person landed on moon. Who's that? Neil Armstrong. So, if there was a colony on moon, there was life on moon, for them, who will be Neil Armstrong? An alien. Exactly. So, you have all seen an alien, along with me. Okay? So, when we talk about something, most of the times we will know what we are talking, but we will not realize what we are talking. Okay, so almost, I don't know, how many of you have seen the sky? Look up at the sky. Please raise, all of you please raise the hands. Okay, so all of you have seen the sky and all of you have seen the moon, particularly in the Ladakh area. It will be very, very beautiful moon. The first time when I visited Ladakh and when I went to Hanley, I really got shocked. In Bangalore, at any time, you will not see more than 50 to 100 stars. For that to happen, you have to wait till 10 o'clock midnight, or maybe by 4 o'clock, all of them will vanish. I don't know where. But at Hanley, when the night fell, I really got shocked. Theoretically, I know that at any time of any time in the night, I can see up to 2,500 to 2,600 stars in the sky. But I was thinking that these are all made up stories, because
आप एक युवा है, तो ये बताओ, फर्स्ट लद्दाख एस्ट्रो फेस्टिवल जो है ये मना रहा है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या लग रहा है? एज ए स्टूडेंट आपका नाम कौन सी कक्षा में है, कौन से स्कूल में, थोड़ा वो भी बताइए। नमस्ते सबको, मेरा नाम है नूरगुड अरुल और मैं हाई स्कूल कलसांग से हूँ। तो मुझे लगता है कि जो ये एस्ट्रो फेस्टिवल मनाया जा रहा है ये काफ़ी अच्छा है। देखा जाए तो जो स्पेस को जो रात में हम देखते हैं उसे हमें जो फील करने के लिए जो कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। हम जहाँ पर पैदा हुए वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम अच्छे से देख सकते हैं। तो ये फेस्टिवल जो है ये मनाने से लोगों में उत्सुकता बढ़ेगी और लोग पार्टिसिपेट करेंगे इन सब चीज़ों में और लोगों को पता चलेगा कि स्पेस में क्या हो रहा है। हम तो बस डेली लाइफ के इन चीज़ों में बस अटक चुके हैं, कभी हम नेचर को एंजॉय कर ही नहीं पाते। तो इस फेस्टिवल की जो मदद से हम नेचर को भी एंजॉय कर पाएंगे और बहुत सारे जो स्पेस इवेंट्स के बारे में जान पाएंगे। एक स्टूडेंट होने के लिहाज से आपको प्रैक्टिकल होना, कोई चीज प्रैक्टिकली देखना कितना जरूरी है? तो देखिए, पढ़ते तो हम सब है, थ्योरी तो हम सब पढ़ते हैं, बचपन से अब तक पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस होता है ना, वो थ्योरी से कहीं ज़्यादा बेटर होता है और हमें अच्छे से पता चलता है। जो किसी चीज़ को पढ़ने से उसका ज्ञान तो मिलता है, लेकिन उसे देखने से हमें एक्सपीरियंस बढ़ता है। हमने स्पेस के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन अगर हम उसे टेलीस्कोप या ऐसे हम देखेंगे, ऐसे फेस्टिवल्स में आएंगे, हमारे जैसे कि इसरो ने क्या क्या काम किया होगा, नासा ने क्या क्या काम किया होगा, उसके बारे में प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो आप देश की बाकी युवाओं को क्या मैसेज है? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके ये जो एस्ट्रोनॉमी है इसमें इंटरेस्ट लीजिए। स्पेस के बारे में जानना एक अपने आप में एक आर्ट है। इस यूनिवर्स के बारे में जानना, स्पेस के बारे में जानना, गैलेक्सीज में क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हम तो अभी सिर्फ अर्थ के बारे में जान रहे हैं, लेकिन जो ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है उसके बारे में जानना हमें बहुत चाहिए, हमें चाहिए ये जानना। तो आप फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे और देश को आप क्या ऑफर करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो फ्यूचर में एक फिजिसिस्ट बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, और हो पाए तो मैं एस्ट्रोलॉजी में भी जाना चाहूँगा अगर मौका मिला तो। बाकी मुझे लगता है कि सबको ऐसे एक फील्ड में जाना चाहिए जिसमें अपने यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया जाए, स्पेस के बारे में पता किया जाए। धन्यवाद, शुक्रिया। तो सर ये बताओ, फर्स्ट लद्दाख एस्ट्रो फेस्टिवल, इसका मेन थीम बहुत अच्छा है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? नमस्कार। ये हम लोग फर्स्ट लद्दाख एस्ट्रो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि लद्दाख का स्काइज, खासकर नाइट स्काइज, जो स्टैडी स्काइज बोलते हैं हम, वो इतना अच्छा है कि मतलब सब लोग यहाँ पे आके इसको अप्रिशिएट करते हैं। और मतलब सब लोग आप जानते हैं कि मतलब हमारे पूर्वजों से सब लोग तारों को देखते आए हैं, उनसे बहुत सीखा है। लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है कि लाइट पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब लोगों को तारे देखना का मौका नहीं मिल रहा है। तो लद्दाख एक ऐसी जगह है ऑल ओवर इंडिया, बहुतों में से, कि जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा क्लियर दिखेगा और बहुत ही स्काईज अच्छा होगा। और यहाँ पे मानसून भी नहीं, बारिश भी नहीं होता है इस टाइम पे ज़्यादा, तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो आप लोग पिछले 2 साल से हम लोग स्टार पार्टी हल्ने में मना रहे हैं, जो हल्ने डांस का रिजर्व है। लेकिन हमने ये देखा कि मतलब हल्ने में बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो क्योंकि लद्दाख में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा स्काई क्लियरिटी है, स्टार्स अच्छे दिखते हैं। तो हमने देखा कि मतलब हम लोग ऐसा एक समर स्टार पार्टी जैसा मना सकते हैं यहाँ पे, कि लोग यहाँ पे आ जाए और उससे एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिले। और मतलब एक तो साइंस तो हो रहा ही है हल्ने में, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में, लेकिन बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसको ऐसे इंटरटेनमेंट, इवनिंग टाइम इंटरटेनमेंट सोचो, वो हम मना सकते हैं। और लोग
स्टार्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो ऑलरेडी पहले हुआ करता था। तो एक चीज ये रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी भी हल्ले किए, जबकि लद्दाख में जब भी कोई आते हैं तो हल्ले जाना बनता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है? जी, मतलब हमें बहुत अच्छा मौका मिला। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को हमने होस्ट किया और वो बहुत अप्रिशिएटिव थे हमारे हानले डार्क स्काई रिजर्व प्रोजेक्ट से, जिसमें दो चीज हो रहा था। मतलब तो हम लोग साइंस को आगे ले ही जा रहे थे, लेकिन हम कम्युनिटी को भी साथ में लेके उनका डेवलपमेंट, तो उसको हम एक यूनिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं, साइंस ड्रिवन जो है। तो वो हम उसको मतलब दोनों जो कम्युनिटी भी जिसमें और साइंस भी एक साथ चल रहा है, तो उनको बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो हल्ले वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, क्या वो नेशनल लेवल पे है या वर्ल्ड लेवल पे इसका कोई स्थान है? फिलहाल जो नोटिफिकेशन है वो नेशनल लेवल पे है, लेकिन हम लोग ये एक ऐसा चीज़ है कि मतलब जो एकदम नहीं होता है, ठीक है, इसमें प्रोसेस लगता है। तो हम लोग उसको लाइट पोल्यूशन मैनेजमेंट जो बोलते हैं, मैनेजमेंट प्लान, उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो जैसे खत्म होता है तो हम इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन के लिए भी जाने के लिए हमारे पास सब कुछ रिक्विजिट मटेरियल है, तो हम बहुत ही जल्दी इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन भी ले लेंगे। तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेने के लिए गवर्नमेंट से क्या क्या सहायता चाहिए, क्या क्या होना चाहिए आगे? ये हानले डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा एक इनिशिएटिव है जिसमें हमें गवर्नमेंट का भी ये सपोर्ट है, कम्युनिटी का भी सपोर्ट है, और साइंस बैक मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का बैकर। ये बहुत ही अच्छा एमलगेमेशन है जो मतलब तीनों चीज को इकट्ठे लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट गवर्नमेंट से हमें मिल रहा है। धन्यवाद। Direct sana sana itu sama agak Foto.